محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی. سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر. گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرانسیسی صدر کے خلاف جمعیت علماء ہند کی جانب سے احتجاج. ہندوستان و ساری دنیا فرانس سے سفارتی تعلقات منتخب کر لے یا مطالبہ. کسانوں کو تکلیف پہنچانے والے رائس مل مالکین کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ضلع کلکٹر نارائن ریڈی. درپلی میں ٹاسک فورس کا دھاوا، بھاری مقدار میں دھماکہ کش اشیاء ضبط، پولیس مصروف تحقیقات. ایم پی ڈی اروند کی تمام تر باتیں بے بنیاد، باتیں کرنا چھوڑ شہر کی ترقی کے لیے کام کرنے کا رورل رکن اسمبلی باجو ریڈی گوردھن نے دیا مشورہ. سابق وزیر داخلہ نائنی نرسمہا کی اہلیہ کا انتقال. پوچرام سرینواس ریڈی، کے ٹی آر، ویملا پرشانت ریڈی و پی یو سی کمیٹی چیئرمین نے کیا اظہار افسوس. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف جمعیت علماء نظام آباد کا احتجاج. صدر فرانس نے سارے ملک میں شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون کو آویزاں کرنے کے سرکاری احکامات جاری کرتے ہوئے غلط مثال قائم کی ہے. دنیا کے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منتخب کرتے ہوئے سبق سکھائے. ساتھ ہی امت مسلمہ اور تمام عالم عرب فرانس کے سامان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے غم و غصے کا اظہار کیا. صدر جمعیت علماء ہند نظام آباد حافظ محمد لائق خان نے نہرو پارک پر شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف منعقدہ احتجاج میں یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ دین اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر شان رسالت میں گستاخی کی جا رہی ہے، جیسے مسلمان ہرگز برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے برہم لہجے میں کہا کہ دنیا کے تمام ممالک میں واقع فرانس سفارت خانے کو جلا دیا جائے. اس احتجاج سے کئی علماء دین نے بھی خطاب کرتے ہوئے سیرت نبی پر روشنی ڈالی. باتزہ صدر فرانس کا علامتی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے اس پر چپل برسائے گئے. باتزہ حافظ محمد لائق خان نے ایک وفد کی شکل میں کلکٹریٹ پہنچ کر ضلع کلکٹر کے توسط سے گورنر کو یادداشت روانہ کی، جس میں حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منتخب کرتے ہوئے سیکولر ملک ہونے کا ثبوت دے. اس تقریب میں ٹی آر ایس قائد ثناء اللہ، کانگریس قائد ضیاء، مدین جوبلی، سماجی خدمت گزار قائد محمد عرفان و دیگر قائدین نے شرکت کی. یہ جو احتجاج منظم ہوا ہے، فرانس کے صدر جو کہ ایک مردود ملعون ہیں، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، جس کو سارے عالم کا مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی غیر مسلم شاعروں نے اشعار کہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی پیغمبر نہیں، سارے عالم کے لیے تو ختم کرے. یہ الگ بات ہے کہ تم بھی ان کے خاص دوست تھے، قریبی تعلقات ہیں، لیکن ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور جذبات مجروح ہوں گے، اور مسلمان اگر اس کو برداشت نہیں کر کے اور سڑکوں پر نکل آیا تو پھر تم اس کو سنبھال نہیں سکتے. ہم آج اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کے جو سفارتی تعلقات ہیں
نہ صرف ہندوستان بلکہ جتنی اسلامی کنٹریز ہے تمام اسلامی ممالک ان سے تعلقات کو توڑ لینا چاہیے. آج ہم اس ملعون اور مردود جو صدر فرانس ہے اس کی ہم جتنی توہین کریں اس کو ہم اپنا اخلاقی اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی تصویر کو ہم پیروں تلے آج رونتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کہ نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر رتی برابر بھی اگر آپ نے گستاخی کی تو مسلمان اپنی جان دے بھی سکتا ہے. اور اللہ کی قسم, کعبے کے رب کی قسم, ہم کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں. جب ہمارے اندر یہ طاقت ہے ہماری جان ہم نبی کی شان میں دے سکتے ہیں. تم اگر گستاخی کرو گے, تم ہماری نبی کی شان میں اگر کوئی تہمت والے انداز کارٹون وغیرہ بناؤ گے ہم تمہاری جان بھی لے لیں گے. اور میں یہاں پر اس چوراہے پر ٹھہر کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی کیس بک ہوتا ہے تو بک ہو جان دو. اگر ہم کو یو اے پی اے کے تحت کیس بک ہو جاتا ہے تو بک ہو جان دو. ہمارے اہل و عیال کو اگر آپ جیل کے اندر ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال دو. ہم کسی کے باپ کو نہیں ڈرتے کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی شان کو برقرار رکھنا ہے. اگر ہماری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہمارے پر لایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we are here gathered to protest against the illegal demonstration of cartoons of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we the people of India conveying the clear message to the President of Macron that Emmanuel Macron that the illegal demonstration on the buildings of the government of France is not only condemnable, it's just unacceptable. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not only the lover to the over 2 billion people of all over the world. Today we the people of India here gathered. شہر نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے منڈل بورگم کے دیہات ڈچپلی منڈل موزے دھرمارام میں موجود دھان خریدی مرکز کا لیا جائزہ. شہر نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے بروز منگل کو منڈل بولگم دیہات ڈچپلی منڈل موزے دھرمارام میں قیام عمل میں لائے گئے خریدی مرکز کا اچانک تنقید کرتے ہوئے عہدیداران سے خریداری مرکز کے پاس بنیادی سہولتوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے بعد سینٹر کے قریب واٹر شیڈ, وینڈنگ مشین و رجسٹر کا معائنہ کیا. اس کے بعد انہوں نے خریداری مرکز کے پاس موجود دھان کے ذخیرے کے ناپ تول کے طریقہ کار سے عہدیداروں سے جانکاری حاصل کی. انہوں نے کہا کہ 445 دھان کے ذخیرے خریداری مرکز کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے ضلع کے تمام رائس ملرز کو 247 ذخیرہ دھان حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے تحت قائم کردہ اصول و ضوابط کے تحت کسانوں کی ایک قسم کی پیداوار پر 1888 روپے اقل ترین امدادی رقم دے گی, جبکہ بی گریڈ کی پیداوار کے لیے فی کنٹل 1868 روپے امدادی رقم دینے کے لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے منظوری عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ تمام کسان حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمت کے تحت اپنا ذخیرہ فروخت کر بہتر قیمت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہوئے کہا رائس مل مالک کی جانب سے کسانوں کو ترگو اور دیگر معاملات میں دقت پہنچانے پر ان رائس ملرز کو سیز کرتے ہوئے قانونی کارروائی کیے جانے کا انکشاف کیا. اس پروگرام میں ایڈیشنل ڈائریکٹر چندر شیکھر, ایگریکلچر عہدیداران, ڈی سی او సింహాచలం, సివిల్ సప్లై عہدیداران نے شرکت کی. అంటే 600 గ్రాముల దాకా మాకు ఇది వస్తుంది. 600 గ్రాములు మామూలుగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లాసెస్ ఉంటాయి. అంటే బ్యాగ్ ఇక్కడ తీసి అక్కడ వేసి అక్కడ చేసినప్పుడు కింద రాదు వెళ్తుంది. సో అట్లా మీరు ఇంక్లూడింగ్ బ్యాగ్ వెయిట్ 41 పెట్టి పంపించేసారు. ఇది చెన్ని పట్టింది నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తిప్పడానికి మీరు ఒక మాట ఏమని సార్ ఒకటే లారీలో 2-3 పంపిస్తారు అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు చెన్ని పట్టిన సపరేట్ పక్కన పెట్టాలి. చెప్పాలి చెన్ని పట్టిన ఒక లారీలో పంపిస్తాం, పట్టణం ఇంకో లారీలో పంపిస్తాం. అంటే రెండు మనము పైన కోర్స్ లాగా సపరేట్ చేయాలి. మనకు అది లోడ్ పంపించినప్పుడు పైన వెరైటీ ఒక లోడ్ అది ప్రాబ్లం లేదు సార్, అది పంపుతున్నారు. అది సపరేట్ ఉంటుంది, అందులో మళ్ళీ ఇది సపరేట్. మీరు అన్నట్టు చెన్ని పక్కనండి మళ్ళీ ఒక దాంట్లో అంటే 100%
ఎఫెక్ట్. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం CEO ఏం చేస్తారంటే మిల్లర్తో మాట్లాడి ఇది ఎఫెక్టివ్ ప్యాడ్ మీకు పంపిస్తున్నా అని చెప్పి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ సర్టిఫికేట్ మీద టక్షీట్ మీద కూడా ఎంటర్ చేసి ఇస్తారు. रहमताबाद के उर्स शरीफ के मौके पर शहर के इलाका धर्मपुरी में मौजूद रमजानी बाबा के चिल्ले पर फातिहा ख्वानी, नियाज व कव्वाली का एहतमाम, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। रहमताबाद में मौजूद मशहूर व मारूफ दरगाह अम्मा जान के उर्स शरीफ की निस्बत से शहर के इलाके धर्मपुरी हिल्स में मौजूद रमजानी बाबा के चिल्ले पर फातिहा ख्वानी, नियाज व कव्वाली का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत करते हुए सवाब हासिल किया। इस मौके पर सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद फहीमुद्दीन चिश्ती व खादरी व सूफी मोहम्मद हामिद अली शाह खादरी ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे जो क्या है उर्स मनाया जाता है, तमाम ज़ायरीन जो आते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अपने अपने खिदत से आते हैं और फैज़ पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सो क्या है कोई मायूस नहीं है, बे औलाद को औलाद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कई करिश्मे नज़र आए। उसी जुम्मन में हम यहाँ उन लोगों की खिदमत के तहत में यहाँ पे जो मौजूद है और बेलौस जो सो खिदमत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फैज़ आम है, हम भी फैज़ आम और का भी छला हुआ है। यहाँ पे हाजी अब्दुल रहमान और सैलानी शाह मियाँ का भी छला हुआ है, उनसे भी फैज़ व आराम पाते हैं। जादू टोना करनी कोटा के हर मुसीबती तहत के जो फैज़ पाते हैं। या जिस्मानी अमराज हो, अम्मा जान नायब रसूल मौजूद है। माँ हबीबा अम्मा जान का बेहतर से बेहतर जो सो क्या संदल मुबारक जो आज हो रहा है और सब फैज़ पा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस्मानी जो भी अमराज है यहाँ पे जो फैज़ पा रहे हैं। शहर निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने शहर के दीगर डिवीजनों में तकरीबन 30 लाख लागती तरक्याती कामों के साथ इफ्तिताह अमल में लाया। शहर निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा डिवीजन नंबर 38 आदर्श नगर के कम्युनिटी हॉल की तामीरी कामों के पास मजहबी रस्मात अंजाम देने के बाद डिवीजन नंबर 20 के शास्त्री नगर में पार्क की अराजी पर हसारबंदी के तामीरी कामों को इफ्तिताह करते हुए डिवीजन नंबर 43 के पंचायत राज कॉलोनी में सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज करते हुए कहा कि निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की मदद से शहर के हर डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने से शहरियान अवाम की जानिब से खुशी का इजहार करने से मजीद तरक्याती कामों के तामीरी कामों को शुरू करके फिलफुर पाए तकमील तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर। అందులో భాగంగానే అన్నగారు ప్రతి ఒక్క డివిజన్కి 10 లక్షలు మంజూరు చేసిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ వార్డులలో ప్రారంభోత్సవాలు జరగడం, ఆ పనులు కూడా సీసీ రోడ్లు సీసీ డ్రైన్లు చాలా వర్క్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా మరి ఈరోజు ఈ 38వ డివిజన్లో కమ్యూనిటీ హాలు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అలాగే 20వ డివిజన్లో కూడా కాంపౌండ్ వాల్ మరియు సీసీ రోడ్డు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 43వ డివిజన్లో కూడా ఒక సీసీ రోడ్ని రోజు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित, नियालम नरसैया, श्रावंती रेड्डी, ईरम गंगाधर, ए शंकर, वाजिद कॉलोनी के अवाम ने शिरकत की। धान खरीदी मरकज के मकसद को मुकम्मल किया जाए, एजेंटों से किसानों को बचाते हुए मुनाफा दिया जाए, जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने बरोज़ मंगल को अपने चैम्बर में ओहदेदारान से खरीदारी मरकज़ के क़याम के ताल्लुक़ से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि किसानों के पास से मकई खरीदने के लिए ओहदेदारान को तलक़ीन करते हुए ब्रोकर्स के पास से मकई को ना खरीदने का इजहार किया और इसी तरह से दीगर रियासतों से आने वाली मकई को भी ना खरीदने के लिए इंतबाह दिया। इस इजलास में जिले एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश, असिस्टेंट कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल, जिले ज़राई ओहदेदार एन सुनीता, जिले कोऑपरेटिव ओहदेदार श्रीनिवास ने शिरकत की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक़ा वज़ीर दाखिला मरहूम नायनी नरसिम्हा रेड्डी की अहलिया श्रीमती अहलिया के साना अर्तहाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक़ा वज़ीर दाखिला मरहूम नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अहलिया श्रीमती के साना अर्तहाल पर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना को शिकस्त देकर दीगर नासाज सेहत की बुनियाद पर इंतकाल होने पर इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। OTP तरीक़ेकार के तहत राशन दुकानात से अशियाए खुर्दनोश की सरबराही आधार को फ़ोन नंबर से लिंक किया जाएगा। नवंबर में भी अनाज की मुफ्त सरबराही। हुकूमत तेलंगाना हर स्कीम में असरी तरीक़ेकार पर अमलावरी कर रही है ताकि धानियों पर रोक लगाई जा सके और मुस्तहिक़ अफराद और ख़ानदान हुकूमत की स्कीमात से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें।
राशन दुकानात के जरिए अनाज की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर की जा रही थी। मुस्तहिक अफराद को माहाना अनाज से महरूम करते हुए राशन दुकानात को मुंतकिल किया जाने वाला अनाज ब्लैक मार्केट मुंतकिल किया जा रहा था। इस पर रोक लगाने के लिए हुकूमत ने राशन दुकानात के जरिए अशियाए खुर्दनोश की सरबराही को ई पास और बायोमेट्रिक तरीक़ेकार पर अमल करने के अहकाम जारी किए, यानी राशन कार्ड गिरिंदे की अंगूठे के निशान को लाजमी करार दिया गया, जिसके बाद राशन दुकानात के जरिए अनाज की स्मगलिंग पर रोक लग गई थी। हुकूमत तेलंगाना ने एक और असरी तरीक़ेकार पर अमलावरी करते हुए OTP के तहत अशियाए खुर्दनोश की सरबराही के अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत राशन कार्ड गिरिंदों के आधार कार्ड और फोन नंबर को लिंक किया जाएगा। राशन दुकानात पर अशियाए खुर्दनोश के लिए रुजू होने वाले अफराद के आधार कार्ड के तहत दर्ज करदा फोन नंबर पर OTP नंबर रवाना किया जाएगा। ये OTP नंबर बताने पर ही अशियाए खुर्दनोश की सरबराही अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस फैल जाने और लॉकडाउन किए जाने की वजह से हुकूमत की जानिब से फी राशन कार्ड गिरिंदों को 10 किलो चावल मुफ्त सरबराह किया जा रहा है। हुकूमत ने माह नवंबर में भी अनाज की मुफ्त सरबराही का ऐलान किया है, ताकि गरीब राशन कार्ड गिरिंदों को माली परेशानी का सामना न हो। आदादो शुमार के मुताबिक निजामाबाद जिले में 751 राशन दुकानात है, जबकि राशन कार्ड गिरिंदों की तादाद 3,90,687 है, जिन्हें हर माह 15,300 मीट्रिक टन अनाज सरबराह किया जाता है। पड़ोसी जिले कामरेड्डी में 577 राशन दुकानात है, जबकि 2,48,150 कार्ड गिरिंदे हैं, जिन्हें माहाना 55,000 मीट्रिक टन अनाज सरबराह किया जाता है। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी होगा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से राशन दुकानात के जरिए अशियाए खुर्दनोश की सरबराही में असरी तरीक़ेकार पर अमलावरी न की जाने तक राशन दुकानात के जरिए अनाज की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की जा रही थी। मुस्तहिक कार्ड गिरिंदों को माहाना अनाज से महरूम करते हुए इस अनाज को ब्लैक मार्केट मुंतकिल किया जा रहा था। मंसूबाबंद तरीके पर सिंडिकेट बनाते हुए ये काम अंजाम दिया जा रहा था। इस सिलसिले में हुकूमत को कई शिकायतें मौसूल होने के बाद असली तरीक़ेकार पर अमलावरी का फैसला करते हुए ई पास और बायोमेट्रिक तरीक़ेकार पर अमलावरी की जा रही थी। मजीद इसमें इजाफा करते हुए OTP तरीक़ेकार पर अमलावरी के अहकाम जारी किए गए। DSO वेंकटेश्वर राव ने बताया कि राशन दुकानात के जरिए OTP तरीक़ेकार के तहत अनाज की सरबराही के सिलसिले में तमाम राशन डीलर्स को अहकाम जारी किए गए हैं। नवमुंतखब शहरी सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक की जिले सदर रफीक कुरैशी व कुरैशी बरादरी की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। चंद दिन कबल ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के शहरी सदर के इंतकाल के सबब नई कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें बहैसियत शहरी सदर बिला इत्तेफाक मोहम्मद रज़्ज़ाक कुरैशी को मुंतखब किया गया। इस मौके पर जिले सदर कमेटी रफीक कुरैशी के दफ्तर पर तमाम नवमुंतखब कमेटी की तमाम कुरैशी बरादरी की जानिब से तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रहीम कुरैशी, अलीम कुरैशी, ख्वाजा कुरैशी, यूसुफ कुरैशी व दीगर ने शिरकत की। कुरैश के डिस्ट्रिक्ट सदर वालों और टाउन सदर थे, तो हमारे बड़े भाइयों का आज कैंसर की इंतकाल होने के वजह से सदारत खाली थी। आज पूरी कमेटी सब देख रहे हैं आप लोग, किसी ने आज सदारत एक्शन कमेटी सदर निजामाबाद के टाउन सदर जो मुझे सदर चुना गया है, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं खरा उतरूँगा। इंशाल्लाह आपकी दुआ मेरे साथ रहेगी। जी हम लोग बैठ के ये तय करी है कि हमको सदर की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा हमको सदर चुनना चाहिए। इसलिए हम आज पूरी कमेटी एक होकर एक मशवरा कर एक प्लेटफार्म पे आकर ये तय करी है कि जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब को सदारत दी जाए, और अल्लाह से हमको ये दुआ है कि जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब इस सदारत को बहुत अच्छे से इसको निभाएंगे और हमारी कमेटी को साथ लेके चलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी यहाँ पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक रहेंगी इंशाअल्लाह। हम मोरतार मंडल मौजे दोनपाल में धान खरीदी मरकज़ का इफ्तिताह अमल में आया।
ضلع نظام آباد بالکنڈہ القاسم علی مورتاڑ منڈل کے سوسائٹی چیئرمین کلم اشوک کی صدارت میں مقامی سرپنچ پرساد دیورنا، نائب سرپنچ رمیش کے، منڈل رائتو سامانویہ سمیتی کے صدر پرساد دیورنا نے دیگر مذہبی رسومات انجام دے کر معزز دونپال میں خریداری مرکز کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد کسانوں کو راحت دینے کے لیے کئی ترقیاتی اسکیمات کے تحت فوائد پہنچاتے ہوئے انہیں مفت برقی، ہر ایک کنٹے کو پانی کی سربراہی اور کپاس کی فصل کو بہتر قیمت ادا کرتے ہوئے کسانوں کے لیے مختلف موضوعات میں خریدی مرکز کا قیام عمل میں لا کر انہیں بہتر قیمت فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو معاشی پریشانیوں سے اور قرض سے نجات دلانے کے لیے انہیں رائتو بندھو، رائتو بیمہ نامی منفرد اسکیمات کے تحت کسانوں کی زندگیوں کو خوشحال بنانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب کسان ترقی کی جانب گامزن ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ تمام کسان اپنے کاشت کردہ فصلوں کو خریداری مرکز پر فروخت کرتے ہوئے بہتر قیمت حاصل کریں۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر مقامی سوسائٹی کے زیر اہتمام ایم پی ڈی او سنتوش کمار نے دھان خریدی مرکز کا افتتاح کیا۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر مقامی سوسائٹی کے زیر اہتمام ایم پی ڈی او سنتوش کمار نے دھان خریدی مرکز کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے تمام کسان اپنے کاشت کردہ پیداوار کو دھان جوار کو خریداری مرکز پر فروخت پر بہتر قیمت حاصل کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو مکمل طور پر راحت دینے کے لیے مختلف موضوعات میں دھان خریدی مرکز کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ منڈل کے زرعی عہدیدار مہندر ریڈی، مقامی سرپنچ سنیتا، منڈل ٹی آر ایس کے صدر بدم پروین ریڈی، ویلپور مارکیٹ کمیٹی وائس چیئرمین بالراج، ڈائریکٹر سوسائٹی سی ای او، وائس چیئرمین نائب سرپنچ شیخ وہاب، سابق کوآپریشن ممبر شاہد، سوسائٹی ڈائریکٹر پرساد گوڈ، راجیشور گوڈ، منڈل گنگا رام راجیشور، یو آر مہندر راؤ، ٹی آر ایس پارٹی قائدین راکیش پوشیٹی، ساگر یادو و دیگر نے شرکت کی۔ راجیہ سبھا ممبر جوگینی پلی سنتوش کمار کی جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج کے تحت تیلگو اداکار ہریش اتمن نے جوبلی ہلز پارک میں پودے لگائے۔ راجیہ سبھا ممبر جوگینی پلی سنتوش کمار کی جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے تیلگو فلموں میں کردار ادا کرنے والے اداکار ہریش اتمن نے آج جوبلی ہلز کے پارک میں پودے لگا کر کہا کہ تمام افراد اجتماعی ذمہ داری کے تحت پودے لگا کر ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے، کہتے ہوئے کہا کہ تمام افراد اپنی سالگرہ کے موقع پر ایک پودا لگا کر اس کی بہتر نگہداشت کرنے کے لیے ہدایت دی۔ اس قدر اچھے پروگرام کے ذریعے شجرکاری کو آگے بڑھانے پر انہوں نے دل کی گہرائیوں سے راجیہ سبھا ممبر جوگینی پلی سنتوش کمار کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر انہوں نے تمام تیلگو اداکار چرن، ستیم راجیش، مدھو نندن کو بھی گرین انڈیا چیلنج پروگرام کو قبول کر پودے لگانے کی ہدایت دی۔ నేను ఇప్పుడు శత్రు గారు నాకు యాక్టర్ శత్రు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు అండ్ ఐ ప్లాంటెడ్ small plant in a park in Jubilee Hills, and now I would like to pass this Green India challenge to 3 other people, that is to actor Satyam Rajesh, Madhunandan and actor Charan. So this is for a good initiative, this is for the nature. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే we are at a point of no return, when it comes to global warming and all that. عثمانیہ یونیورسٹی پی جی امتحانات کا نظر ثانی شدہ ٹائم ٹیبل۔ کنٹرولر عثمانیہ یونیورسٹی کے مطابق ایم ایس سی، ایم اے، ایم کام، ایس ایس ڈبلیو، ایم لیب، آئی ایس سی، ایم اے، جے این ایم سی، ایم کام، آئی ایس، چوتھے سیمسٹر ریگولر، بیک لاگ اینڈ امپرومنٹ امتحانات کے ٹائم ٹیبل پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ منگل 27 اکتوبر پیپر 1، چہارشنبہ 28 اکتوبر پیپر 2، جمعرات 29 اکتوبر پیپر 3، ہفتہ 31 اکتوبر پیپر 4 اور اتوار 1 نومبر پیپر 5 ہوگا۔ امتحانات کے اوقات صبح 11 بجے تا 1 بجے دن ہوں گے۔ انجینئرنگ کلاسز 1 دسمبر سے شروع کرنے کے احکامات۔ اے آئی سی ٹی ای سے ترمیمی شیڈول کی اجرائی، 30 نومبر تک داخلوں کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت۔
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने तरमीमी शेड्यूल जारी करते हुए इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MBA, MCA कोर्सेज के फर्स्ट ईयर में दाखिले लेने वाले तलबा के लिए 21 दिसंबर से कब्ल क्लासेस शुरू करने की हिदायत दी है। कब्ल अजी 21 नवंबर से क्लासेस शुरू करने का एकेडमिक शेड्यूल जारी किया गया था। ताहम IIT, NIT, IIIT जैसे कौमी तालीमी इदारों में दाखिलों का अमल हनूज मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अपने पहले जारी करदा एकेडमिक शेड्यूल में तरमीम किया है। पेशा वाराना टेक्निकी तालीमी कोर्सेज के फर्स्ट ईयर में 30 नवंबर तक दाखिलों के अमल को मुकम्मल करने और 21 दिसंबर से क्लासेस का आगाज करने के अहकामात जारी किए गए हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन सिस्टम के तहत क्लासेस चलाने जरूरत पड़ने पर दोनों निजाम के तहत क्लासेस चलाने का भी मशवरा दिया गया है। UGC की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत पर अमल करने की अपने हुदूद में रहने वाले तालीमी इदारों को हिदायत दी गई कि तलबा को बाशऊर बनाने के लिए इनेकाद किए जाने वाले एजुकेशन प्रोग्राम्स को 3 हफ्तों के बजाय 1 हफ्ते तक महदूद करने, माबाक़ी 2 हफ्तों के प्रोग्राम्स में सेमेस्टर्स का इनेकाद करने पर जोर दिया गया। 2020 के तहत कॉलेजों में दाखिले शेड्यूल में तोसी। तेलंगाना स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन एंड कमिश्नरेट ऑफ कॉलेजिस्ट एजुकेशन ने डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना दोस्त 2020 सेल्फ रिपोर्टिंग खुसूसी मरहले के रजिस्ट्रेशन और वेब ऑप्शंस के तीसरे मरहले की आखिरी तारीख में तोसी का ऐलान किया है। कमिश्नर महकमे कॉलेजिस्ट एजुकेशन नवीन मित्तल और कन्वीनर दोस्त व नायब सदर नशीन कौंसिल R लिम्बाद्री ने आज मतला किया कि रियासत तेलंगाना में हालिया सैलाब और त्योहारों की तातीलात के पेश नजर तलबा, औलियाए तलबा और कॉलेजों की ख्वाहिश पर इस तारीख में तोसी की गई है। तीसरे मरहले की ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग के लिए आखिरी तारीख में 28 अक्टूबर 2020 तक तोसी की गई है। सेल्फ रिपोर्टिंग लाजमी रहेगी, वरना उम्मीदवार को मुख्तस करदा निशिस्त हासिल कर लेनी होगी। खुसूसी मरहले के रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख में 28 अक्टूबर तक तोसी की गई है, जबकि खुसूसी मरहले के वेब ऑप्शंस की आखिरी तारीख भी 28 अक्टूबर रहेगी। खुसूसी मरहले की निशिस्तों के अलाटमेंट का ऐलान 31 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया है कि खुसूसी मरहले के तहत ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवारों को निशिस्तों का अलाटमेंट 31 अक्टूबर तक 5 नवंबर किया जाएगा। मरहला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अलावा खुसूसी मरहले में ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक 5 नवंबर कॉलेजों में रुजू हो सकते हैं। तेलंगाना में कोरोना के मुस्बित केसों की तादाद में कमी। मुसलसल दूसरे दिन भी तेलंगाना में कोरोना के 1000 से कम मामला दर्ज किए गए। रियासत में 582 नए मामला का पता चला है, जिसके बाद रियासत में मामला की तादाद बढ़कर 2,31,834 हो गई है। रियासत में बाहसियत मजमू अमवात की तादाद बढ़कर 1,311 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 अमवात हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,729 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 420 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसियत मजमूई 40,94,417 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 18,611 हो गई है, जिनमें 15,582 मरीज दवाखानों और घरों में जेर इलाज है। GHMC हुदूद में 174 नए मामला दर्ज किए गए, जबकि बकाया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। रियासत भर में 36 तहसीलदारों के तबादले, चीफ सेक्रेटरी के अहकामात मोहम्मद एहतेशामुद्दीन और मोहम्मद शरीफुद्दीन भी शामिल। रियासत भर में 36 तहसीलदारों के तबादले कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। 5वें जोन में 18 और 6वें जोन में 18 तहसीलदारों के तबादले किए गए। जी श्रीनिवास तैनाती के इंतजार में थे, इन्हें करीमनगर अलॉट किया गया। मोहम्मद एहतेशामुद्दीन जो तैनाती के इंतजार में थे, इन्हें जनगांव अलॉट किया गया। श्रीमती रेणुका चौहान को कामारेड्डी से निजामाबाद, एन भूपति को सिद्दीपेट से निजामाबाद, कृष्णा नायक को कामारेड्डी से नागर कर्नूल, शेषागिरी राव को नागर कर्नूल से सूर्यापेट, ए अंजनेलू को सूर्यापेट से नलगोंडा, मोहम्मद शरीफुद्दीन को नागर कर्नूल से नारायणपेट, के मलेश को सिद्दीपेट से निजामाबाद। जी प्रसाद जो तैनाती के इंतजार में थे, इन्हें निजामाबाद अलॉट किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि सरकारी काम के मुताबिक जिनका तबादला किया गया, इन्हें फौरी सुबुकदोश कर दे और जो नई जगह पर ज्वाइन कर रहे हैं, फौरी तौर पर ओहदा संभालने के साथ ही
इसकी रिपोर्ट हुकूमत को रवाना करे। जमीयतुलमा भीमगल मंडल से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। भीमगल जमीयतुलमा के सदर मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद जलाल साहब की क़यादत में चावल, कपड़े, ब्लैंकेट्स व दीगर ज़रूरी सामान ज़िंदगी और 22,260 रुपये इमदादी रकम जमा की गई और जमीयतुलमा निज़ामाबाद के हवाले किए गए। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, मौलाना सनाउल्लाह क़ासमी, मौलवी अब्दुल्ला, वसीम अहमद खान, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना सोहेल क़ासमी, मौलाना सैयद क़ासमी, हाफिज हामिद, हाफिज तौक़ीर मौजूद थे। जमीयतुलमा तमाम माविनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इजलास की शक्ल में अहबाब मस्जिद टाउन करें, जिसके लिए दफ्तर जमीयतुलमा, नज़ाकत ज्वेलर्स, दिल्ली टी कंपनी के अलावा मक्का मस्जिद, अहमदपुरा कॉलोनी, मस्जिद इस्लामिया, हताई गली से भी रुजू होकर तफसीलात मालूम कर सकते हैं। शहर हैदराबाद में राहत रसानी का काम जमीयतुलमा हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना जारी है। सैकड़ों कारकुनान घरों और सामान की सफाई में लगे हुए तमामी मुसलमानों से माली व शियाई इमदाद के साथ साथ दुआओं की अपील और ख्वाहिश की जाती है कि इंशाल्लाह इमदाद वसूली का काम आने वाली जुमा तक जारी रहेगा। जो बारिश की वजह से और मूसा नदी का पानी आने की वजह से, तालाब वगैरह के टूटने की वजह से कई इलाके तबाह हो गए और कई घराने इस वक्त में बेरोज़गार हैं और वो लोग खाने का मोहताज बने हुए हैं। लिहाजा हमारे पास भी हमारी जमीयत उलमा भीमगल शाख भीमगल की जानिब से आज रिलीफ का काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पूरे साथी हैं, अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर दे। रिलीफ का काम सुबह से करे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कपड़े, चावल और कुछ रकम वगैरह भी जमा हुई है। ये निज़ामाबाद दफ्तर जमीयत उलमा निज़ामाबाद दफ्तर पे पहुँचाएँगे और वहाँ से इंशाअल्लाह ये रिलीफ का जो काम यहाँ पर जो जमा हुए और ये पूरा का पूरा निज़ामाबाद से हैदराबाद पहुँचेगा। और जितने भी लोग अब तक ताउन हमारा करें पैसों के ज़रिए से या तो कपड़ों के ज़रिए से या चावल वगैरह के ज़रिए से, जो लोग ताउन करें अल्लाह उनको खूब बरकतें अता फरमाए, उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की अल्लाह पाक अता फरमाए। और इन तमाम लोगों के लिए भी हम दुआ गो हैं जो हमारा सुबह से साथ दिए। दरपल्ली में जिलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर बरामद। महकमे पुलिस के कामयाब धावे में पोचैया नामी शख्स गिरफ्तार, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। शहर निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा दरपल्ली पुलिस स्टेशन के अहाते में मंडल के एक मकान में गैर कानूनी तौर पर इम्तना आयद करदा जिलेटिन स्टिक्स और डिटोनेटर दस्तियाब होने की इत्तला हासिल कर मौके वारदात पर पहुंचकर सारे घर की तनखी करने पर तकरीबन 202 जिलेटिन स्टिक्स और 100 डिटोनेटर्स को तहवील में लिए जाने का इंकशाफ करते हुए इस मौके पर 40 साला पोचैया को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई किए जाने का इंकशाफ किया। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने दीगर वज़रा के हमरा साबिक़ा वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अहलिया श्रीमती अहलिया के साने अर्तहाल पर किया इजहार ताज़ियत। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने साबिक़ा वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी की अहलिया श्रीमती अहलिया के साने अर्तहाल पर खराज क़दर पेश कर इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा देने के बाद इन्होंने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक़्श KTR और रुकन असम्बली आलमुर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के साथ इजहार ताज़ियत की। इस मौके पर इनके साथ गवर्नमेंट वेब बाला सुमन व दीगर कायदीन ने शिरकत की। MP अरविंद हर मामले में नाकाम, अवाम को बेबुनियाद बातों से गुमराह करने की कोशिश। रूरल रुकन असम्बली बाजू गोवर्धन का सहाफ़ती बयान। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजू गोवर्धन ने कहा कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद की जानिब से रेलवे ओवर ब्रिज के ताल्लुक से अवाम को बेबुनियाद बातें कर गुमराह करने का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 30 करोड़ का बजट फराहम हो रहा है, माँ बाकी रकम 63 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने का इंकशाफ करते हुए कहा कि मौजूदा MP अरविंद ने हल्दी बोर्ड लाने का वादा कर तमाम किसानों को अपने जाल में फांस कर धोखा देने के खिलाफ बरहम हो गए। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होकर जहनी तवाज़ुन खोकर अवाम को फिर अपने बनावटी बातों के जरिए बहलाने की एक और कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। तुम्हारे बनावटी बातों में ना कर तुम्हें सही वक्त पर सही फैसला कर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार होने का इंकशाफ किया। నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ధర్మపురి అరవింద్ గారు ప్రెస్ మీట్లో నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు దసరా కానుక ఇస్తున్న నేను
అది చూసి మురిసిపోవాలి, మేము అందరూ పండుగ చేసుకోవాలని చెప్పిండు ఆయన. అదేవిధంగా ఆయన సొంత గ్రామం వెల్పూర్ కాబట్టి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి కూడా కానుక ఇస్తున్నా అని చెప్పిండు ఆయన. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ రూరల్లో నిజామాబాద్ టౌన్ వాళ్ళకు కూడా మంచి శుభసూచకంగా చెప్తున్నా నేను, మంచి వార్త అని చెప్పిన ఆయన. ఒక పేపర్ కూడా పెట్టుకుంటూ మాట్లాడండి ఆ విషయం కూడా. ఆ కానుక ఏందని చెప్పిండు ఆయన. కానుక ఏంటంటే రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ మాధవ్ నగర్ దగ్గర, దానికి 93 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ అయింది. నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు శుభవార్త. దీనిలో ఎవరి వాటా ఎంత అనే వార్త చెప్పలేదు. ఇక్కడ ఒకటి గ్రహించాల, ధర్మపురి అరవింద్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా పచ్చి అబద్ధాలతో కూడుకున్నటువంటి వార్తలు మాట్లాడతారు. గతంలో కూడా 5 రోజుల్లో పసుపోటు తెస్తా అని ఒక నోటరీ రాయించి ప్రజలకు వైరల్ చేసి దానివల్ల గెలిచి ఆ తర్వాత రైతులు నాకు ఓట్లు వేయలేదు అనే రీతిగా జారుకోవడం. ఎట్లా కనిపిస్తుందంటే ఈ వ్యక్తి యొక్క మాటలు చూస్తూ ఉంటే మొత్తము నగ్నంగా బట్టలు లేకుండా నూనె ఒంటికి పూసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ्रांसीसी सदर के खिलाफ जमतुलमा हिंद की जानिब से एहतजाज। हिंदुस्तान व सारी दुनिया फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुंतखब कर ले, या मुतालबा। किसानों को तकलीफ पहुंचाने वाले राइस मिल मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। दरपली में टास्क फोर्स का धावा, भारी मिकदार में धमाका कश अशिया जब्त, पुलिस मसरूफ तहकीकात। MP डी अरविंद की तमाम तर बातें बेबुनियाद, बातें करना छोड़ शहर की तरक्की के लिए काम करने का रूरल रुकन असेंबली बाजूरेड्डी गोवर्धन ने दिया मशवरा। साबिका वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा की अहलिया का इंतकाल, पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, KTR, वेमुला प्रशांत रेड्डी व PUC कमेटी चेयरमैन ने किया इजहार अफसोस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।